Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is going to be our video demonstration for lab number 2. It was due last week, but somehow I couldn't prepare and upload it last week. So hopefully today we'll get done with it and I'll post it on Google Classroom and you will be able to go through it. Again, there is nothing new in this particular lab session. In this lab session, just like the previous lab session, we are going to talk about loops. And hopefully this lab session will give you some more practice on loops, especially the for loop. Okay, now there's another loop that we talked about I guess in our discussion in the theory part of this course, and that was the while loop. So the while loop is again whatever you can do with a for loop, you can also do the same thing with a while loop. But the while loop is it works a little differently than the for loop. So let's restrict our discussion to the for loop for the time being, and let's see what we are going to do in this particular session. So in this session, we are going to revisit the syntax for the for loop, like how do we write, how do we use the for loop, and we are going to try different variations of the for loop. And then we are also going to talk about the nested for loop. So I guess we talked about nesting one loop in the other loop in our in the theory part of this course, but today I'll try to revisit that topic once again. I hope like in lab 1 I shared with you a video that explained the loop in a very easy way. So I hope you have watched that video and I hope you understand whatever happened in that video. But again somebody asked like what is a loop? कि ये लूप क्या चीज़ होती है? तो लूप का जो लुग़वी मतलब है वो तो एक गोल दायरा या गोल चक्कर के है। तो आप अगर किसी चीज़ को एक गोल चक्कर में घुमाएं तो हम बेसिकली यू आर गोइंग थ्रू लूप। ठीक है, तो लूप का मकसद बेसिकली क्या होता है, ये किसी गोल चक्कर का मकसद क्या होता है, उसमें आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अ लूप इज़ बेसिकली repeating something over and over again. So it can be repeating just once or it can be repeating more than once. ठीक है, so in programming, there is often a need for you to repeat the execution of certain instructions. आपको प्रोग्रामिंग में बाज़ात ज़रूरत पड़ती है कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करें, बार बार एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो जब आपको बार बार एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़े तो तब आप लूप्स यूज़ करते हैं। तब आप क्या यूज़ करते हैं? लूप्स यूज़ करते हैं। तो लूप के लुग़वी माने क्या है? गोल चक्कर आप समझ सकते हैं। अब गोल जो चीज़ होती है उसमें आप बार बार एक ही दायरे में घूम रहे होते हैं। ठीक ठीक है, जैसे चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, तो हर 29-30 दिन बाद जो है ना वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इस तरह ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द अपनी रोटेशन करती है। तो 365 दिन जो है और से एक दिन का चौथाई हिस्सा 6 घंटे। ठीक है, तो वो इतने टाइम में जो है ना वो सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसको हम एक साल कहते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ लूप, द अर्थ इज़ मूविंग इन अ लूप, द मून इज़ मूविंग इन अ लूप। ठीक है, अपने मोशन को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें। सो प्रोग्रामिंग में व्हाट डू वी मीन बाय लूप? प्रोग्रामिंग में बेसिकली अगर आपने किसी एक कमांड को या एक से ज़्यादा कमांड्स को बार बार रिपीट करना है तो फिर आपको लूप्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये हम देख चुके हैं, यानी पिछली लैब में हमने इसकी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। अगर आप इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर एन इंटीजर इज़ प्राइम और नॉट, so what do you need to do? So a prime an integer is prime if it is divisible only by 1 and itself. If it is divisible by any other digit, any other number than 1 and itself, then it is not a prime number. ठीक है, so how do you find, आप कैसे मालूम करते हैं कि integer prime है या नहीं? आप बार बार उसको डिवाइड करते हैं। किस चीज़ से डिवाइड करते हैं? पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और उसके हाफ तक जाते हैं। अगर आपने फर्ज के पता लगाना है कि 99 प्राइम नंबर है या नहीं, तो कंप्यूटर के ज़रिए आप कैसे पता लगाएंगे? आप 99 को यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम 2, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से, 5 से, 6 से, और आप रिमाइंडर को देखते हैं।
जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले मतलब वो एक किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर वो किसी एक नंबर से भी डिवाइड होता है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पता है ये कैसे चलता है, आप बार बार स्टेप्स को रिपीट करते हैं। कौन से स्टेप्स को रिपीट करते हैं? उस इंटीजर को डिवाइड करते हैं विद another integer, बट जो another integer है द डिवाइजर, it starts from 2 and it goes up until half of that number। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप रिपीट करते हैं। अच्छा, अगर आपने पहले 100 प्राइम नंबर्स मालूम करने, तो इसमें फिर आपको नेस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, यानी आप एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आपको लगाना पड़ता है। एक फॉर लूप मालूम करता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, और दूसरा फॉर लूप जो है वो अ, इस अंदर वाले लूप को 100 मरतबा रिपीट करता है कम अज़ कम, यानी वो इतनी मरतबा रिपीट करता है ताकि उसको 100 प्राइम नंबर्स मिल जाएं। ठीक है, तो इसको हम फिर भी देखेंगे किसी मिसाल के ज़रिए, बट यहाँ आपको लाइक ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि आपको प्रोग्रामिंग में बाज़ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब लैब 2 में हमने क्या करना है, वही काम करना है। वी हैव टू again understand the for loop and understand it using very basic examples। इसकी जो हैं उसके ज़रिए से हमने इसको समझना है। So let's get started. This is the Octave GUI, graphical user interface. Let's go to the editor and let us create a script file। ठीक है, तो हम script files, in fact there is already one open, let us save it। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। So ये हमारा lab 2 है और उसमें हम ये पहली script file लिख रहे हैं। ठीक है, so script 1, so we'll have multiple script files, तो इसलिए मैंने इसको lab 2 script 1 का नाम दिया है। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। अब इसमें हमने क्या करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर लूप। ठीक है, सो we'll look at the syntax of the for loop and we'll look at the syntax using very basic examples। अब ये जो examples, the examples that we are studying, they don't accomplish anything, they just teach you how the for loop works। Okay, so how does the for loop work? First of all, let us clear the command window and let us say clear any variables in the workspace that we might have। So let us clear all that। Again, this is not necessary, but you can do it। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ भी यहाँ पे, although we don't need to write it down, it is clear, but you should always make a habit। आप जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखें या कोड लिखें उसको प्रॉपरली कमेंट करें। कमेंट करने से मुराद के यू शुड क्लैरिफाई योर इंटेंशंस कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये कमांड हमने क्यों लिखी। सो दिस बेसिकली वुड क्लियर द कमांड विंडो, क्लियर द कमांड विंडो। नाउ दिस इज अ कमेंट। ठीक है, ये कमेंट स्टार्ट होता है विद द परसेंट कैरेक्टर। अब कमेंट क्या चीज़ होती है? कमेंट इज जस्ट अ टेक्स्ट that you add to your script or code and which basically clarifies the purpose of a particular statement or makes the script easier to understand। अगर कोई इसको देख रहा है ना, पढ़ रहा है, तो उसको समझ आती है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इन मे बी कमेंट्स की आपको ज़रूरत ना पड़े, बट स्टिल दे आर यूज़फुल। ये जो कमेंट लिखना है ये प्रोसेस, दिस इज़ यूज़फुल। ठीक है, सो यू शुड मेक अ हैबिट कि आप हर चीज़ को कमेंट करने की कोशिश, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को कमेंट करने की कोशिश करें। सो दिस क्लियर्स द वर्कस्पेस वेरिएबल्स, workspace variables। So this is just to demonstrate you, and this is just to show you like how do you add comments। ठीक है, अच्छा, so what is the syntax for the for loop? Again, अब यहाँ पे we are trying to demonstrate how the for loop works। Okay, so I'll get started with the for loop। If you remember in lab 1, one of the videos that I posted, तो वहाँ पे हम वो justification देते हैं कि जी अब आपको ये, चूँकि ये steps आपने repeat करने हैं, तो इसलिए you need something that will allow you or enable you to repeat these steps। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो काम नहीं कर रहे। यहाँ पे we assume
कि आपको एक प्रोसेस रिपीट करना है, और वो नेक्स्ट जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे कि उसमें आपको एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। सो देन यू वुड हैव मोटिवेशन ऑफ यूजिंग अ फॉर लूप। बट यहाँ पे आप सिर्फ फॉर लूप को समझें कि फॉर लूप को अगर आपने यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो फॉर लूप स्टार्ट होता है विद द कीवर्ड फॉर, ठीक है, एंड इट एंड्स विद द कीवर्ड एंड, ठीक है। सो दिस इज वेयर द फॉर लूप स्टार्ट्स, दिस इज वेयर इट एंड्स। अब इस फॉर और एंड के बीच जो भी होगा वो रिपीट होगा, उसकी एग्जीक्यूशन बार बार होगी, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस फॉर और एंड के बीच जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो वो रिपीट होगा, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, एक कुछ कोई चीज़ कमांड विंडो पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। से वी जस्ट प्रिंट दिस मैसेज using a for loop, okay. So this message would be displayed multiple times, repeatedly ये डिस्प्ले होगा, कितनी मतलब डिस्प्ले होगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लिखेंगे और जैसे लिखेंगे। अच्छा, फॉर लूप में यानी एक तो आप उसको स्टार्ट करते हैं विद द कीवर्ड फॉर और वो एंड होता है विद द कीवर्ड एंड। फॉर और एंड के बीच जो चीज़ होगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 1000 स्टेटमेंट्स हो, वो एग्जीक्यूट होंगी बार बार, वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, वो रिपीट होंगी, उनकी एग्जीक्यूशन रिपीट होगी। कितनी मरतबा रिपीट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप जो फॉर लूप के आगे जो काउंटर है उसके लिए क्या क्या वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर वी सेड दैट फॉर लूप इज अ काउंटर कंट्रोल लूप, ठीक है। What do you mean by counter control loop? So for a for loop, you basically specify a vector of values for the loop counter. ठीक है, तो हम for example for this for loop we use the variable c as the loop counter, and we say कि c would start from 0. This is the initial value of c, and say this is the final value of c, ठीक है। तो अब ये जो c है इसके लिए हमने ये एक वेक्टर ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब you should remember कि this would generate a vector. If you don't remember, let me refresh your memory. So if I do something, if I say something like this 0 and then the colon operator and 5, so it will create this vector of values starting from 0 going up until 5, ठीक है। तो ये initial value है और ये final value है, ठीक है। So here we specified the initial value and the final value. We did not specify the increment, ठीक है। तो ये वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि we'll try different flavors of or different variations of the for loop. So this is one variation of the for loop. यहाँ पे you just specify the initial value, यानी यहाँ पे what did we specify? We specified the initial value for the loop counter and then we specified the final value for the loop counter. Default increment size 1 जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब how should we interpret everything now? So this is a for loop that starts like here and it ends here, and it has one statement. This is a statement, ठीक है, this is a statement or command, ठीक है, और command, ठीक है, and this statement or command, this single statement or command, it forms the body of the for loop. What does it form? It forms the body of the for loop, ठीक है। Let us just keep the word body here. So ये जो for loop की body है, this would be repeated, ठीक है, यानी ये जो command है ये repeat होगा, इसकी execution बार बार होगी, कितनी बार होगी, that is determined by the values that we have generated for this loop counter. So ये C जो है ये हमारे इस loop का counter है. This basically keeps track of कितनी मर्तबा ये जो loop है ये execute होगा, कितनी मर्तबा होगा, that is determined by the number of values that we have specified for C. तो ये एक vector of values C के लिए हम generate कर रहे हैं, और वो कौन सी values हैं, वो हैं start करती हैं 0 से और जाती हैं 5 तक, ठीक है।
सो सी की वैल्यू जीरो के लिए ये कमांड एग्जीक्यूट होगा. फॉर सी इज इक्वल टू 1 दिस कमांड वुड बी एग्जीक्यूटेड. फॉर सी इज इक्वल टू 2 3 4 5. So all in all 6 times this statement will be executed. ठीक है, and we can verify that. आप अगर इस कमांड को रन करें इस स्क्रिप्ट फाइल को, so this is what we see on the command window. So we have this message printed 6 times. 6 मरतबा ये मैसेज हमारे पास प्रिंट हुआ. ठीक है, for each value of the loop counter C. तो आप इसको थोड़ा सा हम से मॉडिफाई भी कर सकते हैं. We can say display लूप काउंटर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं. सी की वैल्यू को हम डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ हम इसके बजाय हम ये डिस्प्ले कर देते हैं कि दिस इज अ फॉर लूप ऑफ द फॉर्म 0 to 5. ठीक है, तो ये इस फॉर्म का फॉर लूप है. यानी वी इन दिस फॉर्म वी जस्ट स्पेसिफाइड द चलिए लूप काउंटर को भी ऐड कर देते हैं. लूप काउंटर वी स्पेसिफाइड द initial value and final values for the loop counter. We did not specify the increment. ठीक है, so this particular for loop. Now होगा क्या, वही होगा. ठीक है, कि for each value of the loop counter C, these two statements. अब for loop की body जो है ना वो ये दो statements हैं. ठीक है, display C and display this. So these two statements would be repeatedly executed, repeatedly, again and again. How many times? So that depends upon the number of values that we have specified for the loop counter C. So loop counter C के लिए हम कितनी values हमने specify की हैं? We have specified 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Total 6 values we have specified for the loop counter C. तो इतनी मरतबा ये execute होगा, 6 मरतबा execute होगा. Let us rerun this program. तो अब हमारे पास command window पे ये values आ रही हैं. ठीक है, तो c इज इक्वल टू 0 लूप काउंटर की इनिशियल वैल्यू c इज इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 4 5. फॉर ईच वैल्यू ऑफ द लूप काउंटर हमारे पास वो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, अच्छा दिस इज वन वेरिएशन ऑफ द फॉर लूप. ठीक है, अब हम नाउ विल ट्राई दिस अनदर वेरिएशन ऑफ द फॉर लूप. ठीक, and all these variations, like we generate these variations by playing with these quantities, the initial value, the final value and the increment. Okay, so the syntax for the for loop is like you have this loop counter, and then for the loop counter you basically specify the initial value, the increment size and the final value. If you do not specify the increment size, just like in this case यहाँ पे हमने increment नहीं specify किया, so the default increment of 1 is assumed, and ये जो loop counter है इसकी initial value को फिर 1 से increment किया जाता है. कहाँ तक? जब तक आप फाइनल वैल्यू तक ना पहुंच जाएं. ठीक है, तो पहले 0, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. ठीक है, सो यू रीच 5, सो देन यू स्टॉप देयर. अच्छा, हमने अभी क्या करना है, हमने अभी इसकी और वेरिएशंस को ट्राई करना है. ठीक है, सो हर वेरिएशन की आउटपुट के बीच हम ये आउटपुट डाल देते हैं. ठीक है, सो वी डिस्प्ले दीज हैट्स so that like you can differentiate कि कहाँ से दूसरी वेरिएशन स्टार्ट कर रही है. So let me copy and paste it here. So now we have the same for loop, but हम यहाँ पे एक और चीज़ specify कर रहे हैं, and that is the increment. ठीक है, increment से मुराद कि the loop counter will start from the initial value and it will go up until the final value, but कितनी how would it be incremented so that it reaches the final value. ठीक है, so here we would specify the increment size. ठीक है, so now we want the loop counter to be incremented by 2. We want it to start with 0 and then we want it to be incremented by 2. तो ये start होगा 0 से, फिर 0 plus 2 2, फिर 2 plus 2 4, फिर 4 plus 2 6. तो ये 4 पे रुक जाएगा. ठीक है, अगर 5 हो पॉसिबल होता तो 5 पे रुक जाता, वरना इट वुड स्टॉप एट समथिंग लेस देन द फाइनल वैल्यू.
ठीक है। 6 जो है वो 5 से बढ़ के है, तो 6 के लिए ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल ओनली एग्जीक्यूट फॉर 0, 2 एंड 4, सो ये 3 टाइम्स दिस लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, दिस लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। सो नाउ लेट्स वेरीफाई कि ऐसे होता है या नहीं होता, ठीक है। सो अब इसको लेट अस रन इट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन, जहाँ पे हमारा लूप काउंटर जो है वो सिर्फ हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, एंड द इंक्रीमेंट साइज इज द डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट साइज, तो ये 6 मरतबा एग्जीक्यूट होता है। दूसरे केस में हम इंक्रीमेंट साइज को 2 कर देते हैं, ठीक है, तो अब वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचता है, लेकिन जंप जो है वो लगाता है दो दो की, सो 0+2, फिर 2+2 एंड देन 4+2 एंड देन इट स्टॉप्स, ठीक है। तो लूप काउंटर की कौन सी वैल्यूज होती है हमारे पास, ट्राई होती हैं 0, 2 एंड 4, ठीक है। अच्छा, this is one variation. We can try yet another variation of this for loop. Again, there won't be anything new about the for loop or its syntax. We'll only change these values. In values को हम change करेंगे. Now, it's not necessary that you start with a 0 initial value. The initial value can be anything, ठीक है? And similarly, the increment can be anything. So the initial value can be other than 0. So say we can start from -5, ठीक है? So we can start from -5 and go up until 5 or something less than 5. So इस केस में क्या होगा? You'll start from -5. अच्छा, increment size को भी let us try a different increment size, say 3 try करते हैं। अच्छा, you should always remember कि increment size को आप ऐसे choose करें कि you should be able to reach the final value. Starting from the initial value, you should be able to reach the final value. Like you should be moving in the right direction. So it's important that you choose the correct increment size. अच्छा, यहाँ पे अब लूप काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, -5, नेक्स्ट फिर क्या होगी, -5+3 -2, उसके बाद -2+3 1, उसके बाद 1+3 4, उसके बाद 4+3 7, वो बढ़ जाती है, तो ये -5 -2 1 और 4, तो 4 मरतबा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड हियर वी कैन मेक दीज चेंजेस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी इसकी इनिशियल वैल्यू -5 है, और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट साइज जो है वो 3 है, एंड देन फाइनल जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई दिस वन, और आप वेरीफाई कर सकेंगे कि ये जिस तरह हमने कहा ना कि इतनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, 4 मरतबा, तो ये 4 मरतबा ही एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स सी, ये वाला जो लूप हमने जिसमें हमने चेंजेस की, उसमें लूप काउंटर की इनिशियल वैल्यू -5 है, पहले जो वेरिएशंस थी उनमें 0 होता था, तो -5, और इंक्रीमेंट साइज जो है हमने वो 3 रखा है, ठीक है। सो -5, फिर -5+3 -2, फिर -2+3 1, फिर 1+3 4, उसके बाद जब हम लूप काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो इट सरपासेस द फाइनल वैल्यू, लिहाजा ये लूप जो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो या लूप काउंटर अगर फाइनल वैल्यू तक पहुंचे या उससे बढ़ जाए तो ये लूप आपका रुक जाएगा, ठीक है, लूप आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, so I hope like this is clear. Now we'll try one last final variation of the for loop, and again is variation may be there is nothing new, we just tinker with these initial and final values. अच्छा, all these variations that we have tried, so यहाँ पे आपका जो loop counter है it is always incrementing, so you can have a situation where the loop counter is decrementing, ठीक है। So say for example you can start with the value 10 and you can have a loop counter that decrements, ठीक है। Say for example -3, you can have a loop counter -3, sorry, the step size, ठीक है ना, let us call it step size, ठीक है, step size, अच्छा जी, let us call all these as step size। तो हमारा step size जो है it can be positive as well as negative, ठीक है, step size can be positive as well as negative. So here we choose a negative step size. So here the loop counter is decrementing, ठीक है, it starts with a big positive value
and then we decrement it and it goes up until say a small value. Let us say हम इसको लेके जाते हैं -5 तक, ठीक है. So it starts from 10, it goes up until -5. So initial value इसकी 10 होगी, ठीक है. Let me copy this thing here. So it starts with a higher initial value 10 और फिर ये decrement होता है और it goes up until -5 or something less than -5, ठीक है. So start होता है 10 से, 10 minus 3 7, 7 minus 3 4, 4 minus 3 1, 1 minus 3 minus 2, minus 2 minus 3 minus 5, ठीक है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कितनी 5 मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. लेट अस वेरीफाई, लेट अस save this file and run it. अच्छा, so here you'll see it starts with the loop counter c equal to 10, then 10 minus 3 7, 7 minus 3 4, 4 minus 3 1, 1 minus 3 minus 2, minus 2 minus 3 minus 5. So it executes around 6 times, 4 मरतबा पॉजिटिव वैल्यूज, 2 मरतबा नेगेटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है. These are all the possible, like these are the different variations of the for loop or these are the different possible ways in which you can try the for loop. Again, the basic theme is like you use the for loop whenever you want to repeat the execution of certain commands or statements, ठीक है. जब आप किसी command or statement की execution को आपने repeat करना हो, so then you need to use the for loop or or the while loop, ठीक है. Now let us consider a very simple practical examples where we would need to repeat a certain command, ठीक है, or certain set of commands. So if you look at these tasks, अच्छा हमने अभी क्या करना है. अच्छा, we have to talk about the nested for loop. Let us talk about the nested for loop first, and then we'll talk about those practical situations, ठीक है. अच्छा, let me create another script file and let us save it. This is lab2 script 2, ठीक है, and let us add nested to it so that we know that this is basically this demonstrate the nested for loop. अच्छा, nested for loop, what does the nested for loop say? Nested for loop says, let me clear the command window and clear the workspace variables. So what nesting means, nesting का क्या मतलब है, ठीक है. nesting का मतलब ये है कि you have this for loop, अच्छा, for end, ठीक है. It starts here and it ends here. You have this for loop, and inside this for loop you create or put another for loop, for and then end, okay. अच्छा, so now you have two loops, but one loop is nested within the other loop, okay. So you can call this for loop as the outer for loop. This one is the outer for loop, ठीक है. And this one here is the inner for loop or nested for loop. This is the inner for loop or nested for loop, ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं inner or nested for loop, ठीक है. अच्छा, so what difference does nesting make? अब nesting से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है. nesting की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? So I hope like ये जो problems है ना, problems like this one, for example, if somebody asks, if you're asked to write a script file that finds the first 100 prime numbers, ठीक है. So you already know if you need to find a prime number, you need to use a loop because there is repeated division involved there, ठीक है. So you need to find out, you need to determine whether some particular number is a factor of a number or not. So वहाँ पे किसी एक नंबर को अगर आपने पता लगाना हो कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे आपने 100 प्राइम नंबर्स मालूम करनी है, तो इसका मतलब है कि वो जो एक नंबर की प्राइमैलिटी का पता लगा रहे हैं ना, आपने उस प्रोसेस को 100 मरतबा रिपीट करना है, ठीक है.
सो हियर यू वुड नीड नेस्टेड लूप्स। एक लूप तो सिर्फ एक नंबर को चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, और जो दूसरा लूप होगा वो 100 प्राइम नंबर बराबर करेगा। ठीक है। So in situations like these, like you need to use nested loops. Nested loop can be a nested for loop, or it can be a nested while loop, or it can be a for loop nested in a while loop, or a while loop nested in a for loop. ठीक है। अब इस सारी मुश्किल अंग्रेजी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक for loop nested है within a for loop. You can nest a while loop, यानी you can have a while loop here nested within a for loop, or a for loop nested within a while loop. ठीक है। So you can have all these possibilities. There is nothing difficult about it. ठीक है। अच्छा, let's stick to this one. Now यहाँ पे I'll only demonstrate कि इसका nesting का असर क्या होता है. Like how does nesting affect the execution of different statements. ठीक है। अच्छा, so this is the outer for loop. Say for example हमारा जो outer for loop है उसका जो loop counter है that is C1, एंड C1 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 से 5 तक। ठीक है। द डिफॉल्ट वी आर यूजिंग डिफॉल्ट इंक्रीमेंट साइज। फॉर द इनर फॉर लूप वी हैव द लूप काउंटर C2, और C2 जो है उसकी लूप काउंटर की जो वैल्यूज़ हैं से फॉर एग्जांपल वो हैं 0 to 3। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द इनर फॉर लूप डू डज व्हाट डज द इनर फॉर लूप डू सॉरी So the inner for loop doesn't do anything special. It just displays this message. ठीक है। Which message does it display? So it just displays this message. Inner for loop. ठीक है। Inner for loop. Or let us add this thing to it. These two words. We are inside the nested for loop. ठीक है। Nested for loop. So this is what it does. It does nothing else. So we want to print this message for each value of the inner loop counter. Okay, and that is 0, 1, 2, 3. So this message will be displayed 4 times. 4 times का मतलब ये है कि सिर्फ इस लूप की वजह से ये मैसेज 4 मरतबा डिस्प्ले होगा। लेकिन ये जो आउटर फॉर लूप है, अब फॉर लूप का मकसद मतलब ये है कि इस फॉर और इस एंड के बीच जो भी होगा वो रिपीट होगा। अच्छा, अब इस फॉर और इसके इस एंड के बीच देयर इज अनदर फॉर लूप, अ नेस्टेड फॉर लूप। तो इसका क्या असर होगा? इसका ये असर होगा कि ये जो नेस्टेड फॉर लूप है ना, ये रिपीट होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आउटर लूप काउंटर। तो आउटर लूप काउंटर इज C1। C1 की हमारे पास 0 से लेके 5 तक 6 वैल्यूज हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ C1 दिस लूप वुड बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है। यानी ये जो कमांड्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ C1। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप है इनर लूप, ये 6 मरतबा एग्जीक्यूट होगा। अब ये बजाते खुद एक लूप है, तो ये लूप जब एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है तो ये स्टेटमेंट 4 मरतबा प्रिंट होती है। ठीक है। ये लूप जब एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है मुकम्मल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये 4 मरतबा एग्जीक्यूट होती है और प्रिंट होती है। अब ये जो लूप है इसने 6 मरतबा एग्जीक्यूट होना है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है इसने फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 मरतबा ये प्रिंट होगी। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। वी आर इनसाइड द आउटर फॉर लूप। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ इनसाइड द आउटर फॉर लूप। ये हमारा आउटर फॉर लूप है जो कि स्टार्ट होता है स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 4 से और एंड होता है स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 9। सो दिस इज आवर आउटर फॉर लूप। ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी फॉर ईच एक्सिक्यूशन ऑफ द आउटर फॉर लूप। तो आउटर फॉर लूप हमारी 6 मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि आउटर फॉर लूप का जो लूप काउंटर है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, एंड होता है एट 5। ठीक है। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ C1 ये जो आउटर फॉर लूप की बॉडी है दिस इज एक्सिक्यूटेड। आउटर फॉर लूप की बॉडी में दो चीज़ें हैं, एक ये डिस्प्ले स्टेटमेंट है तो 6 मरतबा ये डिस्प्ले स्टेटमेंट वो होगा। दूसरा एक और फॉर लूप है तो 6 मरतबा ये फॉर लूप भी एग्जीक्यूट होगा।
अब ये फॉर लूप जब एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है तो C2 जो है वो 0 से स्टार्ट लेता है 3 तक जाता है, और फॉर ईच वैल्यू ऑफ दैट इसकी ये जो बॉडी है ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है। तो 4 मरतबा ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप। ठीक है, फॉर ईच कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप। तो ये 6 मरतबा इसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, यानी C1 की 6 वैल्यूज़ के लिए इस लूप में एग्जीक्यूट होना है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फिर 24 मरतबा प्रिंट होगी, एंड यू कैन वेरीफाई दैट। ठीक है, तो हम इसको सेव एंड रन करते हैं, एंड देन यू कैन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब स्टार्ट लेते हैं ना एग्जीक्यूशन, जब यहाँ से स्टार्ट, पहले तो कमांड विंडो इज क्लियर्ड, देन द वर्कस्पेस वेरिएबल्स आर क्लियर्ड, एंड देन वी स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम हियर। तो C1 इज इक्वल टू 0 के लिए इस लूप की एग्जीक्यूशन होती है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो इसकी बॉडी में पहली स्टेटमेंट है डिस्प्ले वी आर इनसाइड द आउटर फॉर लूप। So you get this thing, this message on the command window, we are inside the outer for loop। ठीक है, उसके बाद ये for loop इसने मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, और ये जब मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होगा तो क्या होता है, C2 की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी 4 मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। 4 मरतबा आपको ये मैसेज प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, वी आर इनसाइड द नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, we are inside the nested for loop, we are inside the nested for loop, we are inside the nested for loop, we are inside the nested for loop। ठीक है, जब ये 4 मतलब प्रिंट हो जाता है तो आपका ये जो आउटर फॉर लूप है इसकी बॉडी एक मरतबा एग्जीक्यूट हो गई। फॉर C1 इज इक्वल टू 0, लूप काउंटर C1 की वैल्यू 0 के लिए इसकी एग्जीक्यूशन हो गई। फिर लूप काउंटर C1 जो है वो इंक्रीमेंट होता है, इट बिकम्स 1। नाउ फॉर C1 इक्वल टू 1 ये फिर एग्जीक्यूट होगी पूरी बॉडी। फिर ये मैसेज आपके पास प्रिंट होगा, वी आर इनसाइड द आउटर फॉर लूप। ठीक है, सो यू गेट दिस मैसेज, वी आर इनसाइड द आउटर फॉर लूप। और उसके बाद फिर वो जो इन नेस्टेड फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगी। तो 4 मरतबा आपके पास ये मैसेज प्रिंट होगा, वी आर इनसाइड द नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, देन उसकी इस लूप की एग्जीक्यूशन, ये जो आउटर फॉर लूप है इसकी बॉडी की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाती है, एंड देन फॉर C1 इक्वल टू 2 इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सो यू विल हैव ऑन द आउटपुट, ये जो मैसेज है ये आपके पास 6 मरतबा प्रिंट होगा, और ये जो मैसेज है इसको अगर आप टोटल काउंट करें ना तो ये 4 और 6, तो 6 4 24 मरतबा ये प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 मरतबा ये यहाँ प्रिंट हुआ, 4 मरतबा यहाँ 8, फिर 4 मरतबा यहाँ 12। ठीक है, अच्छा, फिर 4 मरतबा यहाँ 16, फिर 4 मरतबा यहाँ 20, और फिर आखिरी 4 मरतबा 24। 24 मरतबा आपके पास ये मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है डिस्प्ले वी आर इनसाइड द नेस्टेड फॉर लूप, द स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 7, इसकी एग्जीक्यूशन आप काउंट कर सकते हैं कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड जितनी मरतबा आपका ये जो लूप काउंटर है इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाय इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, जितनी मरतबा इनर लूप एग्जीक्यूट होता है मल्टीप्लाइड बाय जितनी मरतबा आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है। तो आउटर लूप 6 मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर लूप 4 मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 6 4 24 मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दैट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब ये भी आप समझ लें कि नेस्टेड फॉर लूप का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एक ही मरतबा नेस्टिंग कर सकते हैं, यू कैन हैव another level of nesting। ठीक है, यानी हम ये काम भी कर सकते हैं। मैं इनको, so we can have another for loop, we can say for C0 equal to, और ये 0 से लेके से 2 तक, and then end। so now we have 3 levels of nesting। ठीक है, so we are inside the innermost for loop, we are inside the, now this is the outermost for loop। ठीक है, this is the outermost for loop, outermost for loop, this one is the innermost for loop। अच्छा, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं
मिडल कह लें, वी आर इनसाइड द मिडल फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप यू कैन हैव डिस्प्ले स्टेटमेंट। यहाँ पे let us say we are inside the outermost for loop. अच्छा, now we have three levels of nesting. ठीक है, तो again you should not be confused कि अब क्या होगा. So you can determine precisely which statement would be executed like how many times. So the this statement which is inside the innermost for loop, ये कितनी मरतबा execute होगा? जितनी मरतबा ये innermost for loop execute होती है multiplied by जितनी मरतबा ये middle for loop execute होती है multiplied by जितनी मरतबा ये outermost for loop execute होती है. तो ये execute होती है 4 मरतबा, ये 6 मरतबा, ये 3 मरतबा. तो 6 4 24, 24 3 72. ठीक है, तो 72 times you will have this message. You will have this message printed 72 times. This message would be printed 24 times, and this message would be printed how many times? 3 times. ठीक है, so this message would be printed 3 times. So let's verify. आप इसको verify भी कर सकते हैं. अच्छा जी, so this is the outermost for loop वाला message. ये पहला एक. अच्छा, बीच में ये 24 मरतबा ये चीज़ें प्रिंट होंगी. फिर दूसरी मरतबा आउटर मोस्ट फॉर लूप पर फिर 24 मरतबा ये मैसेज प्रिंट होंगे. और फिर तीसरी मरतबा आउटर मोस्ट फॉर लूप पर फिर 24 मरतबा ये मैसेज प्रिंट होंगे. ठीक है, तो वो टोटल 72 टाइम्स ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैसेज है वी आर इनसाइड द इनर मोस्ट फॉर लूप, ये 72 टाइम्स ये प्रिंट होता है. ठीक है, so I hope like you understand what nested for loop is, or how nesting works, how does it affect the number of times a particular statement would execute. ठीक है, so I hope like this is clear to you. And again, just we mentioned as we mentioned before, like you can nest a for loop within a for loop, or a while loop within a for loop, or a for loop within a while loop, and you can have these different levels of nesting. ठीक है, तो nesting के आप मुख्तलिफ levels जो हैं, you can have these levels. अच्छा, now let us get back to the list of tasks. अच्छा, अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल किस्म की एग्जांपल्स करेंगे. So for example, what we want to do is, let me maximize it ताकि आपको ज़रा clear नज़र आए. We have demonstrated this. ठीक है ना, for loop को like we know the syntax of the for loop. We should know the syntax of the for loop. We have tried different variations of the for loop. We have tried nested for loop. अब हम again, like in the last lab we looked at some practical problems जिसमें आपको you need to repeat uh, uh, a certain command or a certain set of commands. आप उनको repeat आपको करना पड़ता है. In this lab as well we will look at some problems जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को repeat करना पड़ता है. For example, if you have vector and in that vector you want to find out के maximum value क्या है, minimum value क्या है, या what is the mean of the vector, इस vector का average या mean क्या है. So if you want to find out things like these, तो आप क्या करेंगे. ठीक है, so what are you going to do? So let's see, let me introduce you to some built-in functions first. Let us clear the command window and clear the workspace variables. Acha. So say first let's generate a vector. Say we want to generate a vector v. The vector v would be all random elements, and जिसकी maximum value होगी say 99. ठीक है, or this would be a vector with say 5 elements. Say for example, let us make things easy. So we generated a row vector with 5 columns, and all the values in this row vector are random, and they are in the range of 1 to 99. इस range में, ठीक है, और 0 to 99. So I hope you remember कि rand I
रैंडम इंटीजर जो फंक्शन है मैटलैब का, तो ये किस तरीके से काम करता है, मतलब कैसे ये वैल्यूज जनरेट करता है। सो आई होप यू नो कि इन तमाम इनपुट्स का क्या मतलब है। तो दिस इज़ बेसिकली the limit on these random values के इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 99 होगी। ठीक है, तो 99 या उससे कम, 0 और 99 के बीच जो रैंडम वैल्यूज़ हैं वो आपको जनरेट होंगी। And these are the number of rows and columns. So we want to generate a row vector, so that is why number of rows is 1 and number of columns is 5. अच्छा, now we want to find out कि इसमें maximum value क्या है। ठीक है, v की maximum value क्या है। So we can see कि इसमें maximum value 93 है। ठीक है, so maximum value of v is 93, but if you want to find out maximum value, we have function max, built-in function है Octave या MATLAB में। You can use this function and it will find out the maximum value in a vector. So यहाँ पे 93 है, so it will return you 93. Similarly, we have a built-in function min, minimum, min for minimum, max for maximum, min for minimum. So it will find you the minimum value in this vector, which is 51. ठीक है? So minimum value is 51. And similarly, if you want to find out the average value, so you can use the function mean. ठीक है? So mean will find out the arithmetic mean of a vector. So ये जो mean होगी, 3 values 50s में हैं और 2 values 90 हैं, तो 60 something में मेरे ख्याल में mean value आ जाएगी। 68.6 is your mean value. अच्छा जी, now we want to write functions like these. खुद से हम लिखना चाहते हैं, ये तो built-in function है। Built-in functions हैं, ठीक है, you can use them, and once you have a built-in function, you should not be rewriting built-in functions. But here we are learning things, ठीक है, तो हम for loop का इस्तेमाल जानना चाहते हैं। So we want to find out कैसे हम मालूम करेंगे मीन किसी वेक्टर का या मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम मालूम करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। सो से फॉर एग्जांपल आप मीन वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, ये जो वेक्टर हमारे पास है इसकी एवरेज वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। तो एवरेज वैल्यू को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वेक्टर की तमाम वैल्यूज़ का सम मालूम करना है। ठीक है, यानी इन वैल्यूज़ को जमा करना है, इन वैल्यूज़ को जमा करना है। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को जमा करना है। अच्छा, अब वेक्टर का साइज़ आपके पास यानी उसमें 1/5 भी हो सकता है, 1/5000 भी हो सकता है। तो आपने ऐसा कोड लिखना है जो कि हर साइज़ ऑफ वेक्टर के लिए काम करे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट अ कोड जिसमें हम किसी वेक्टर की के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकें। ठीक है, और फिर हम उसका मीन कैसे मालूम करते हैं। मीन इज़ बेसिकली सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। So first we'll find the sum of all the elements of a vector, and then we'll divide it by the number of elements, the total number of elements, and that's how we are going to get the average. So let us do that. Okay? Let's create another script file, and this script file is lab. Oh, sorry. Let us save it. Okay? This is again lab2 and script 3. Okay? And here we want to find out the mean of a vector. अच्छा जी, so let's say we have this vector. फिलहाल हम उसको random values नहीं assign करते, let us assign it some constant values। ठीक है, say 51 58 वही values जो हमने randomly generate की, 90 51 या 50, चलो 50 कर देते हैं, 53। ठीक है, so we have these values, so this is our vector। ठीक है, now let us write this code by looking at this vector and then we can generalize it। ठीक है, इसको फिर हम generalize भी कर सकते हैं। अच्छा, so we want to find out the mean of all the values in this vector। ठीक है, so let us call mean को let us call it as average। ठीक है, AVG। अच्छा, वो हमने मालूम करना है। अच्छा, we don't need to call it AVG। so first of all we need to find out the sum of all these elements। ठीक है, the sum of the vector v, so sum v, let us call it as sum v। so first of all we need to find the sum variable, we declare a sum variable and we initialize it with the value 0।
तो सम इनिशियली उसको हम 0 की वैल्यू असाइन करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन तमाम वैल्यूज़ का सम मालूम करना है। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे बाय एक्सेसिंग ईच वैल्यू ऑफ द वेक्टर v वन बाय वन एंड एडिंग इट टू द वेरिएबल सम। तो पहले हम 51 को एक्सेस करेंगे एंड वील ऐड 51 टू सम v। उसके बाद हम 58 को एक्सेस करेंगे एंड वील ऐड 58 टू सम v, फिर 90 को, फिर 50 को, फिर 53 को। ठीक है। अच्छा, तो हम बारी बारी इस वेक्टर की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे और उसको फिर हम ऐड करते जाएंगे टू द वेरिएबल सम भी। ठीक है। तो यहाँ पे अब नाउ यू कैन सी लाइक वी आर रिपीटिंग अ प्रोसेस. What is the process? The process is we need to access an element of vector v and we need to add that element to the variable sum v. ठीक है, that is what we are doing. और उस सम को हमने कॉन्स्टेंटली, दिस वुड बी अ रनिंग सम, लाइक इसमें सम वी में पहले 51 होगा, 0 और 51 का सम होगा, फिर 51 और 58 का सम होगा, फिर 51, 58 और 90 का सम होगा, फिर 51, 58, 90 और 50 का सम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस वुड बी अ सम जो कि कॉन्स्टेंटली हम कैलकुलेट किए जा रहे हैं. ठीक है. So like a computer when it just like us, हम भी numbers को जो add करते हैं तो दो दो numbers को at a time add करते हैं. तो computer literally does binary, like literally treats addition as a binary operation. So when computer adds two numbers, so it adds like if a computer has to find the sum of 10 numbers, तो ये उन 10 नंबर्स का सम एक ही गो में नहीं मालूम करता, बल्कि वो दो दो नंबर्स को एट अ टाइम ऐड कर रहा होता है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वील फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर. अच्छा, हमने करना क्या है, हर इस वेक्टर की हर एलिमेंट को एक्सेस करना है. वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे यूजिंग द इंडेक्स. हमने कहा था कि आप किसी भी वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स. ठीक है. यहाँ पे आए जी, दिस इज वेक्टर v. For example, we want to access the first element of vector v. So we can say v vector v इसका जी पहला element v1. So that is 51. अच्छा, we want to find out के तीसरा element vector v का. ठीक है. So v3 within parenthesis we provide the index. So ये vector v है, इसमें एक से ज़्यादा elements हैं. तो आपने अगर पहले element को access करना है, so you use the index 1, then index 2, 3, 4, 5. ठीक है. से इंडेक्स 5 पे कौन सा एलिमेंट है, 93. ठीक है. So we thought of it as something similar to your class numbers. So आपकी क्लास में अगर किसी particular student को address करना है, so we can use the class number. So class number 1, 2, 3, 4. So you are in second semester. So second semester में अगर हमने students को access करना है, तो we don't need to know their names, we just need to call their class numbers कि class number 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है. Similarly fourth semester में भी there would be some class number 1, 2, 3, 4. ठीक है. So हर vector में if you want to access the individual elements, you can use the index of those elements to access individual elements. ठीक है. So you can do that. And the index always starts from 1 and it goes up until the length of the vector. So what is the length of v? You can use the length function. So length of v जो है वो है 5. So length of v is 5. So you can find the length of vector using the length function. ठीक है. अच्छा, यही काम हमने यहाँ पे करना है. We need to access all the elements of v starting from index 1 going up until the length of v. So we need to use a for loop क्योंकि हमने एक प्रोसेस को रिपीट करना है, हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसको ऐड करना है विद सम v. फॉर लूप का जो लूप काउंटर है, लेट अस कॉल इट c. इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 क्योंकि हमारे पास हमने इस लूप काउंटर को यूज करना है एज एन इंडेक्स टू एक्सेस these individual elements of vector v. So it must have the initial value 1 and its final value should be length of v, length of vector v. That is what its final value should be. ठीक है. अच्छा, and then end.
So this would allow us like to access each element in the vector v. अच्छा, वेक्टर v के हर एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है. कैसे करना है? वेक्टर v और फिर विद इन पैरेंथेसिस हमने इंडेक्स प्रोवाइड करना है. सो द इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ लूप काउंटर c, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 एंड इट गोज अप अंटिल लेंथ ऑफ v, व्हिच इन दिस केस इज 5. लेंथ ऑफ v इन दिस केस इज 5. अच्छा, सो c जो है वो 1 होगा पहले, 2 3 4 एंड देन 5. और हम v1 पहले v1 एक्सेस करेंगे, फिर v2, फिर v3, फिर v4, फिर v5, इस तरह एक्सेस करेंगे. इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद हमने करना क्या है? सो हमने बेसिकली इनका सम मालूम करना है. ठीक है, और सम हम स्टोर कर रहे हैं इन द वेरिएबल सम v. तो सम हम कैसे मालूम करेंगे? सम v प्लस vc. सो इनिशियली द वेरिएबल सम v इज इक्वल टू 0. ठीक है, so initially sum v is equal to 0. So when the loop starts executing, तो क्या होगा? sum v में initially the value is 0. अच्छा, and we add 0 plus v1. तो हम 0 plus 51 को add कर रहे हैं, तो sum v में 51 आ जाएगा after the first execution or iteration. ठीक है, after the first iteration. so यहाँ पे हम एक term use कर रहे हैं iteration. Iteration is basically single execution of a loop. कोई लूप अगर एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है तो उसको हम कहते हैं वन इटरेशन, सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप. सो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन सम वी में क्या होगा? 51 की वैल्यू होगी. क्यों? क्योंकि सम वी में इनिशियली 0 की वैल्यू है. तो जब c की वैल्यू 1 होगी और ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इस स्टेटमेंट में सम v इज 0 प्लस v1 इज 51. सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वेरिएबल सम v में 51 की वैल्यू होगी. नेक्स्ट टाइम जब c की वैल्यू 2 होगी तो अब क्या होगा? हमारे पास सम v की वैल्यू है 51 और उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं v2 58. तो फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 51 प्लस 58 विच इज़ 109. उसकी वैल्यू 109 हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. 109 हो जाएगी. फिर c जब 3 के बराबर हो जाएगा फिर क्या होगा? सम v प्लस v3. तो 109 जमा 90, 199 हो जाएगी. फिर c जब 4 होगा तो सम v प्लस v4. सो 199 प्लस 50, सो 249 हो जाएगी. अच्छा, फिर उसके बाद सम v, तो यू कैन बेसिकली डिस्प्ले इट, यानी जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना रनिंग सम, तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. लेट अस डिस्प्ले इट. ठीक है, सम v. तो आपको बस सम भी इनिशियली 51 होगा, फिर 51 प्लस 58 109. ठीक है, और उसके बाद फिर 199 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. अच्छा, आफ्टर दिस लूप, वंस दिस लूप इज डन, तो सम वी में इन तमाम एलिमेंट्स का सम होगा. ठीक है, तो उसके बाद हम वी कैन फाइंड आउट द एवरेज और मीन. ठीक है, सो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? सो वी कैन से डिस्प्ले the mean is what is the mean? The mean is basically sum v divided by the length of vector v. ठीक है, so this is the mean, sum v divided by the length of vector v. So after this loop is done, so we would have the sum of all the elements of vector v in the variable sum v. And when we divide sum v by the length or the total number of elements in vector v, so we basically can get the average or mean of vector v. ठीक है, so we can verify कि ये कोड काम करता है या नहीं करता. उससे पहले let us clear all the workspace variable and then let us clear the command window. ठीक है, and let us run this code. अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनसाइड द लूप हम सम v यानी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मालूम कर रहे हैं. तो पहले हम सम v, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, पहले हम उसके साथ 51 ऐड करते हैं, वो 51 हो जाता है. फिर 51 के साथ 58 ऐड कर लेते हैं तो 109 हो जाता है. फिर
51 और 58 के सम के साथ 90 ऐड कर देते हैं तो 199 हो जाता है, फिर उसके साथ 50 ऐड कर देते हैं तो 249 हो जाता है, और फिर उसके साथ हम ऐड कर देते हैं 53 तो 302 हो जाता है। एंड इट इज़ व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, तो हमारे पास 60.4 की वैल्यू आती है। यू कैन यूज़ दी बिल्ट इन मीन फंक्शन, आप उसको इस्तेमाल करके मीन मालूम कर सकते हैं ऑफ वेक्टर वी, इट वुड आल्सो बी द सेम वैल्यू 60.5। तो आपका फंक्शन ठीक काम कर रहा है, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, अच्छा, नाउ यू कैन मेक इट लाइक जेनेरिक। यहाँ पे हमने v को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यूज दी, या यूँ आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, यू कैन से v इज इक्वल टू, आप रैंडम कोई एलिमेंट्स जनरेट करें इन द रेंज 0 to 9, यानी उनकी वैल्यूज शुड बी फ्रॉम 0 to 99, और आपका जो वेक्टर है उसकी डायमेंशंस कैन बी से 1/10, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का हो, एंड दिस कोड वुड वर्क फाइन, ये कोड जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। अच्छा, तो पहले हम v को भी डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले, ताकि पता लगे v कौन सा, v की क्या वैल्यूज़ हैं, डिस्प्ले v, और फिर मीन की वैल्यू भी आ जाएगी। लेट अस रन दिस थिंग। अच्छा, ये हमारे पास वेक्टर v है 83, 80, 28, 38, ऑल दीज वैल्यूज़। अच्छा, दिस इज द रनिंग सम, ठीक है, और दिस इज़ द मीन। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जी बिल्ट इन फंक्शन के साथ कि आप जो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। So this is one example where you can use the for loop to find out the mean mean of a vector, ठीक है, or average value of a vector. अच्छा, let us write another program, ठीक है, and this time मैंने उस कोड को कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। This is lab 2 script number 4 and this is about maximum, हम maximum मालूम करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड अ वेक्टर, ठीक है, वो कैसे मालूम करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, सो वी हैव दिस वेक्टर v, से अगेन वी स्टार्ट विद दिस वेक्टर एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। सो लेट अस, कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इज कि वो हम कैसे मालूम करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, यानी आपने एल्गोरिथम बनाना है पहला काम। तो अब इस वेक्टर में मैक, ये तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स का वेक्टर है। हम तो जब लाइक द वे वी ह्यूमंस वर्क इज कि वी लुक एट दिस वेक्टर एंड वी फाइंड आउट कि अच्छा 90 इसमें बड़ी वैल्यू है सबसे, तो मैक्सिमम इज़ 90। बट हमारे लिए भी काम मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास इस वेक्टर में से, फॉर एग्जांपल इन दिस वेक्टर वी हैव 5000 वैल्यूज, 5000 वैल्यूज हैं, और वैल्यूज़ भी बड़ी बड़ी हैं, से 100 तक की नहीं है बल्कि 1000 या 10,000 तक की वैल्यूज हैं। उस केस में हाउ वुड यू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो फिर हमारे लिए भी मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप सोचें वैसे कि आप कैसे मालूम करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को। तो आप फॉर एग्जांपल लाइक आप मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आप पहली वैल्यू से देखना शुरू कर देते हैं and you compare the second value with the first value. If the second value is bigger than the first value, you forget about the first value. You just keep in mind the second value. फिर तीसरी वैल्यू को देखते हैं, अगर वो तीसरी वैल्यू इससे बड़ी है तो आप इसको भूल जाते हैं, इसे याद रखते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम 90 है। फिर आप चौथी वैल्यू को देखते हैं, वो छोटी है, आप इग्नोर कर देते हैं। पांचवी वैल्यू छोटी है, इग्नोर कर देते हैं। छठी वैल्यू अगर है वो 90 से अगर ऊपर है तो आप 90 को भूल जाते हैं, उसे याद रखते हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट यू एसेंशियली डू इज़ कि आप पहली वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं और आप उसको एज्यूम करते हैं कि से दिस इज़, एंड जहन में आप एज्यूम कर लें कि दिस इज़ माई मैक्सिमम। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो बड़ी है तो आप इसको भूल जाते हैं, फिर इसे याद रखते हैं, और इसको फिर कंपेयर करते हैं तीसरी वैल्यू के साथ, अगर तीसरी वैल्यू इससे भी बड़ी है तो आप इसको भूल जाते हैं, फिर इसे याद रखते हैं। फिर इसको कंपेयर करते हैं विद द फोर्थ वैल्यू,
And if the fourth value is bigger, you forget about this one, you remember the fourth. But in this case, the fourth one is smaller, so you just ignore the fourth one. Then you compare the fifth value with this value. Okay? And if the fifth value is bigger, you forget about this one and you just remember the fifth one. Or if it is smaller, then you ignore the fifth one, you just remember this one. ठीक है? तो इस प्रोसेस को आपने कोड करना है. कैसे कोड करेंगे? So say for example we want to find out the maximum value, और maximum value को हम स्टोर करेंगे in the variable maximum. ठीक है? अच्छा, तो मैक्सिमम आप पहले एज्यूम कर लें कि जी मैक्सिमम वैल्यू है जो पहली वैल्यू है इस वेक्टर की. एज्यूम कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो v1 इज आवर मैक्सिमम वैल्यू. एज्यूम दैट दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है? सो दिस इज आवर assumption. This assumption would be tested again and again, and if this assumption is false, we will correct it and we'll get a new maximum. ठीक है? और उस मैक्सिमम को फिर हम टेस्ट करेंगे आगे. अगर वो भी गलत साबित होता है तो हम उसको फिर अपडेट कर देंगे. ठीक है? तो दिस इज काइंड द प्रोसेस जो कि अभी हमने ज़ुबानी जिसका जिक्र किया, उस प्रोसेस को हम कोड करेंगे. तो कोड कैसे करेंगे? वैसे करेंगे कि वी हैव दिस वेरिएबल मैक्सिमम, जिसमें हम टेम्परेली मैक्सिमम वैल्यू को, टेम्पररी मैक्सिमम को स्टोर करेंगे. टेम्पररी मैक्सिमम से मुराद कि जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम है. फिर हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद दिस वन. अगर ये बड़ी है तो हम मैक्सिमम को चेंज कर देंगे. हम कहेंगे कि नहीं, अब ये हमारा मैक्सिमम है. ठीक है? इसके बाद हमें ये एक और बड़ी वैल्यू मिलती है, हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं. हम कहते हैं कि नहीं, 90 इज़ आवर मैक्सिमम. फिर हमें मिलती है 50 की वैल्यू, तो 50 स्मॉलर देन 90, सो वी जस्ट इग्नोर इट, वी डोंट डू एनीथिंग. एंड देन 53 अगेन, इट इज़ स्मॉलर, सो वी डोंट डू एनीथिंग. ठीक है? अच्छा, so we start off with this. हम कहते हैं कि maximum, the first value in this vector, we say that this is our maximum value. ठीक है? अच्छा, and now we need to compare this maximum with all the values, the remaining values in this vector. ठीक है? तो पहली वैल्यू हमारी मैक्सिमम हमने एज्यूम कर ली. अब हमने इसको बकाया तमाम वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है और देखेंगे कि क्या ये हमारी एजम्पशन ठीक है या नहीं. अगर तो इफ़ इट होल्ड्स फॉर ऑल द वैल्यूज़, फाइन. इफ़ इट डज नॉट, देन वी नीड टू चेंज. सो अगेन यहाँ पे आप लूप यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आपने इस पहली वैल्यू को कंपेयर करना है विद तमाम वैल्यूज़, और अगर आपको बड़ी वैल्यू इससे मिलती है तो आपने मैक्सिमम को अपडेट करना है. ठीक है? सो वी नीड टू यूज़ अ फॉर लूप, दैट इज़ फॉर श्योर. फॉर लूप का जो लूप काउंटर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सो इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 2. पहली वैल्यू को तो हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज़ आवर मैक्सिमम. अब हमने इस पहली वैल्यू को कंपेयर करना है विद द सेकंड वन, और उसके बाद फिर तीसरी, चौथी, पांचवी. तो 2 से हम स्टार्ट लेंगे and we'll go up until the length of vector v. ठीक है? अच्छा, सही है. अब हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है. कैसे कंपैरिजन करना है? इफ vc, यानी ये जो इंडेक्स सी पे हमारे पास वेक्टर v में इंडेक्स सी पे जो वैल्यू है, इफ दिस इज ग्रेटर देन हमारा जो मैक्सिमम है, जिसको हमने एज्यूम किया हुआ कि जी ये हमारा मैक्सिमम है, अगर ये उससे बढ़ के है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें नया मैक्सिमम मिल गया. सो वी नीड टू चेंज द मैक्सिमम. दिस इज आवर न्यू मैक्सिमम. ठीक है? जैसे यहाँ पे देखें, हमने कहा कि v1 इज आवर मैक्सिमम. मैक्सिमम इज इक्वल टू v1. दिस मीन्स v1 यानी 51 इज आवर मैक्सिमम. सो फाइन, ठीक है, आपने कह दिया 51 इज योर मैक्सिमम. अब क्या करना है आगे? अब हमने 51 को कंपेयर करना है विद नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है? जो कि है एट इंडेक्स 2 इन द वेक्टर v. सो हम v2 को कंपेयर करेंगे विद मैक्सिमम. क्या v2 यानी द वैल्यू एट इंडेक्स 2 इन वेक्टर v, क्या वो इज इट ग्रेटर देन मैक्सिमम? सो v2 पे हमारे पास वैल्यू है 58 एंड 58 इज ग्रेटर देन 51 which is the current maximum. So this condition is true. इसका मतलब है कि 51 is no longer our maximum. We have a new maximum and that is 58. ठीक है? That is 58.
So we have found a new maximum. Maximum is equal to VC, and VC is basically V2, which is 58. ठीक है? So we can say end if or simply end. अच्छा, if it is smaller than maximum, then we don't need to do anything. अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू होती जो कि V2 से स्मॉलर है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 48 here, से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 48 here, इसका मतलब है कि V2 is greater than maximum, ये जो कंडीशन है this would be false, so we don't need to do anything, this statement will not be executed, और उसके बाद हमें else की कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इस वक्त हमें कोई काम नहीं करना, हमें बड़ी वैल्यू में हम इंटरेस्टेड हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज बिगर देन आवर करंट मैक्सिमम 51. So 48 is smaller than 51. So we just need to ignore 41. हमें 41 का कुछ नहीं करना. हम फिर अगली वैल्यू को देखेंगे कि क्या वो 51 से बड़ी है या नहीं. ठीक है? So we'll move to the next iteration of this loop, C3. C की वैल्यू जब 3 हो जाए, हमने फिर V3 को कंपेयर करना है विद मैक्सिमम. So V3 is 90. Is 90 greater than maximum, which is 51 right now? Yes, this condition would be true. इसका मतलब है कि हमें नई maximum value मिल गई है. So maximum would be equal to V3 90. ठीक है? Then again we check अगली value को. क्या V4 is it greater than our current maximum 90? No. So we don't need to do anything. Just go and check out the next value. क्या हमारा V5 is it greater than or equal to our current maximum? No, so we don't need to do anything. तो यहाँ पे आखिर में हम फिर ये डिस्प्ले कर देंगे कि हमारा जो वेक्टर है V वो क्या है, डिस्प्ले V, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इन V is, and then we'll display maximum. ठीक है. अच्छा, so let's run this code and see क्या होता है. So this is what V is and maximum value in V is 90. ठीक है, ये हम मालूम कर देते हैं. ये विजिबली नज़र आ रहा है हमें सामने के ऐसा ही है, और अगर हम मैक्स फंक्शन को यूज़ करें तो वो भी हमें यही रिजल्ट देता है 90. ठीक है, लेट अस इसको थोड़ा सा जेनेरिक बना देते हैं. जेनेरिक से मुराद, लेट अस जनरेट अ वेक्टर V विथ रैंडम वैल्यूज़ से 99 तक, और इट इज़ अ रो वेक्टर विथ 10 एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये जो कोड हमने लिखा है इट इज़ जनरल इनफ कि ये किसी भी वेक्टर के लिए आपको मैक्सिमम मालूम करके देगा. लेट्स बिल्ड एंड रन इट. सो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये जो वेक्टर है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 80 है. ठीक है, सो द फर्स्ट वैल्यू वही मैक्सिमम है, तो आपको वो ठीक तरीके से नज़र आ जाती है. आपका जो प्रोग्राम है इट फाइंड्स आउट द करेक्ट मैक्सिमम वैल्यू. दोबारा से इसको रन करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 60 है, इस पोजीशन पे वो ठीक मालूम कर रहा है. तो मैक्सिमम वैल्यू जिस पोजीशन पे भी हो, द पॉइंट इज़ वो आपको ठीक करके मालूम करके दे रहा है. दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे 93 इनिशियली, यहाँ पे 97 इस पोजीशन पे. ठीक है, so that is basically the code जो कि मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है. so I hope you understand the algorithm. अगर आपको समझ नहीं आई तो ये जो सारी डिस्कशन हमने की है इसको आप वीडियो में दोबारा से सुन लें तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. अच्छा जी, नाउ इफ़ यू गेट बैक हियर, यहाँ पे वी हैव अनदर टास्क के मिनिमम वैल्यू इन अ वेक्टर मालूम करनी है. तो मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करनी है? ठीक है, सो आई लीव दिस एज अ टास्क फॉर यू गाइस. ठीक है, ये जो मैक्सिमम का कोड है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन अ वेक्टर. ठीक है, once you do that, these are the tasks that you need to do. ठीक है, इसमें अपना आपने क्या करना है, you have to create a random matrix, और उस random matrix में फिर आपने इंडिविजुअल रोज में मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, इंडिविजुअल कॉलम्स में. सो रो में मैक्सिमम मालूम करनी है वैल्यू, कॉलम में भी. मैट्रिक्स में फिर आपके पास यू विल हैव मल्टीपल रोज, सो यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम इन ईच रो.
and you will have multiple columns as well. You need to find out the maximum value in each column. Similarly, you need to find out the minimum and maximum values in minimum values in each row and each column, and the mean of each row and each column. And you also need to understand how does the maximum, minimum and mean functions work on matrices. अगर आप matrices के लिए इन functions को call करें तो वो कैसे काम करते हैं. So again, all you need to do is create matrices and apply these functions and see how they work. ठीक है, और आप अपने फिर ये functions भी create करेंगे. ठीक है. So this is it for today. It's not just for today, it's for last week. Today I'll try कि आज की lab कभी मैं वो record कर लूँ and I'll share it with you. ठीक है. But this is it for today so far. So I hope like you would be able to do these tasks. So I'll upload this list of tasks, and I'll also, I don't want to upload, I'll upload the video. I don't want to upload the script files. So I want you to watch the video and write the script files on your own. Okay? So it's easy for me to upload the script files, but you should be like you should be watching the videos and writing these for yourself. ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है. अच्छा जी, that's it for today. Allah Hafiz.